ہمارے عالم تصور میں حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری تھی. میں نے کہا اے آدم علیہ السلام آپ بتائیے کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ ہے میں نے دیکھا نہیں. میں نے کہا حضور آپ نے دیکھا نہیں؟ کہا ہاں میں نے دیکھا نہیں میں نے سنا. اور آگے میں بڑھا حضرت ذوالکفل سے کہا یہ اللہ کے پیغمبر کیا خدا ہے؟ کہا ہاں خدا ہے. میں نے کہا حضور کیا آپ نے دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا نہیں ہے بلکہ مجھے جبرائیل نے بتایا. اور آگے میں گیا حضرت نوح علیہ السلام سے کہا اے نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر کیا خدا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا ہاں خدا ہے. میں نے کہا حضور کیا آپ نے دیکھا ہے؟ نوح علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے دیکھا نہیں مجھے جبرائیل نے بتایا ہے. اور آگے میں گیا حضرت ابراہیم سے کہا اے ابراہیم علیہ السلام کیا اللہ ہے؟ کہا ہاں اللہ ہے. میں نے کہا حضور کیا آپ نے دیکھا ہے؟ کہا میں نے دیکھا نہیں بلکہ سنا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بارگاہ میں نے حاضری دی. میں نے کہا اے اللہ کے پیغمبر اسلام میں ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ کہا میں نے دیکھا نہیں بلکہ سنا ہے جبرائیل نے مجھے بتایا ہے. اور آگے گیا حضرت زکریا سے کہا اے زکریا علیہ السلام کیا خدا ہے؟ کہا ہاں خدا ہے. میں نے کہا حضور آپ نے دیکھا ہے؟ کہا میں نے دیکھا نہیں ہے بلکہ میں نے سنا ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے میں نے کہا اے اللہ کے پیغمبر خدا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں خدا ہے. میں نے کہا حضور کیا آپ نے دیکھا ہے؟ کہا میں نے دیکھا نہیں بلکہ سنا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عالم تصور میں حاضری تھی. میں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کیا خدا ہے؟ کہا ہاں خدا ہے. میں نے کہا حضور آپ نے دیکھا ہے؟ کہا میں نے دیکھا نہیں بلکہ سنا ہے. کسی بھی انسان سے آپ پوچھو سب کہے گا خدا ہے لیکن آپ کہیں گے کہ آپ نے دیکھا ہے؟ کہیں گے سب کے سب میں نے خدا کو دیکھا نہیں بلکہ سنا ہے. سب کہیں گے کسی کوئی کہے گا عالم نے مجھے بتایا, کوئی کہے گا مجھے پیر نے بتایا, کوئی کہے گا مجھے حافظ نے بتایا. تو آپ میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, میرے ذہن نے جھنجھوڑا, میرے جمیل نے مجھ سے سوال کیا کوئی نہ کوئی ذات ہوگی, کوئی نہ کوئی ہستی ہونی چاہیے جس نے خدا کو دیکھا ہو, جس نے اپنے ماتھے کی نسلوں سے اللہ کا دیدار کیا ہو, انسر کے ماتھوں کی نسلوں سے اللہ کو دیکھا ہو. میں پہنچا مدینہ شریف میں مصطفیٰ کے قدموں میں اپنے سر کو رکھ کے عالم تصور میں کہا خدا کا ابھی و امی قلبی و روحی یا رسول اللہ آپ کے قدموں پہ میری گردن قربان, میرے ماں باپ قربان, میرا دل قربان یا رسول اللہ. آدم سے میں نے کہا یا اللہ ہے, کہا ہاں میں نے دیکھا نہیں سنا ہے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی ہیں سب نے کہا میں نے سنا ہے دیکھا نہیں, بلکہ کسی نے کہا جبریل نے بتایا, سب نے کہا سنا یا رسول اللہ اللہ ہے. پیغمبر فرماتے ہیں اللہ ہے. عالم تصور میں نے کہا یا رسول اللہ خدا کو آپ نے دیکھا. مصطفیٰ فرماتے ہیں ہم میں نے اپنے سر کے ماتھوں سے خدا کو ایک مرتبہ بلانے کی وجہ سے اللہ کے پاس جا کر میں اللہ کا دیدار کیا. 9 مرتبہ خدا کو میں اپنی مرضی سے ماتھے کی نظروں سے دیکھا ہے. پتہ ہے میرے دوستو کہ اللہ کو دیکھنے والی ذات اگر کوئی ہے تو ہم سب کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آؤ میں آپ کو اور تیزی کے ساتھ بتاتا چلوں. پتہ ہے میرے دوستو یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے اور اس کی نسبت جو ہے سارے ثواب کی غرض سے ہے. پتہ ہے میرے دوستو آؤ میں آپ کو تیزی کے ساتھ بتاتا چلوں. آج ہم اپنے آپ کو جو ہے اپنے گھر کے اپنی ماں بہنوں کو جو ہے ہم تربیت دیا کریں, پیغام دیا کریں کہ پردے میں رہا کریں. آپ کہیں گے مولانا اگر ہمارے گھر کی بہن, ہمارے گھر کی عورتیں اگر پردہ میں رہے تو اس میں ہمارا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ پتہ ہے بہت ساری اسلام کی شہزادی, اسلام کے ماننے والی جو ہے ڈگری کے پیچھے جو ہے بھاگتی رہتی ہے, سر کے بال کھلے ہوئے نظر آتے ہیں, بے پردگی اسے جو ہے زیادہ بھاتی ہے. لیکن اے میری ماں بہنوں ڈگری کے پیچھے بھاگنے کی کوئی ضرورت ہے؟ اگر بھاگنا ہی ہے تو سیدہ فاطمہ کے پیچھے بھاگو, حضرت زینب کے پیچھے بھاگو. آپ کہیں گے مولانا اگر میرے گھر کی عورتیں, ہمارے گھر کی بیٹیاں ڈگری کی طرف نہ بھاگے, فاطمہ زہرا کے سیرت پہ عمل کرے, سیدہ زینب کے سیرت پہ عمل کرے تو میرا کیا فائدہ ہوگا؟ اس میں ان کو کیا فائدہ ملے گا؟ تو اے میری ماں بہنوں اس جملے پہ غور کرنا. اگر تم ڈگری کے پیچھے نہ بھاگ کر سیدہ فاطمہ, سیدہ زینب کے کردار پہ عمل کر لو گی تو میرا ایمان کہتا ہے کہ تیرے گھر میں حسین پیدا ہو یا نہ ہو لیکن غلام حسین
जरूर पैदा होगा। तेरे घर में गुलाम हुसैन गौस पैदा हो या ना हो, गुलाम गौस जरूर पैदा होगा। मखदूम सिन्ना पैदा हो या ना हो, लेकिन गुलाम मखदूम सिन्ना जरूर पैदा होगा। और मैं आपको तेजी के साथ बताता चलूं, पहुंच जाऊं मदीना की सरजमीन पे, वहां भी इस्लाम की शहजादी थी, इस्लाम के मानने वाली थी, मुस्तफा से मोहब्बत करने वाली थी, वो भी इस्लाम की शहजादी थी, वो भी इस्लाम की बेटी थी, इस्लाम के चाहने वालों की बेटी थी। अल्लाह अकबर कबीरा। मदीने की सरजमीन है। एक जो है ईसाई जो है सोनार की दुकान खोल कर बैठा हुआ है, वहाँ इस्लाम की शहजादी, इस्लाम के मानने वाली लड़की पहुंची, वहाँ जो है जेवरात लेने के लिए। जब दुकान के अंदर वो इस्लाम की शहजादी गई ना, जाने के बाद जो है उसने कहा मुझे ये सामान चाहिए, लेकिन ईसाई था, दुकान में बैठा था, दुकान का मालिक था, वो जो है इस्लाम की शहजादियों के हाथ की खूबसूरती को देखने के बाद कहता है इस्लाम की शहजादी पैसा है तो मुझे खुश कर दो, तुम जो है मुझे खुश कर दो, मैं तुझे तमाम जेवरात दे दूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। वो जेवरात उठाकर जो है इस्लाम की शहजादी के पास रख दिया। अब इस्लाम की शहजादी ने क्या की, इस्लाम की बेटी ने क्या की, वो तमाम जेवरात उठाकर जो है ईसाई पादरी के मुंह पे मार दी और कहा ईसाई पादरी कान खोल कर सुन ले, जो मुस्तफा के हाथ पे बिक जाए वो दुनिया के किसी खरीदार से नहीं बिका करते, क्योंकि जिसको मोहब्बत आमना के लाल से हो जाए कोई इंसान अपने मोहब्बत जो है उसके दिल में बसा ही नहीं सकता है। लेकिन पता मेरे दोस्तों, आज हमें और आपको जरूरी है कि हम अपनी बच्चियों को इस्लाम के साँचे में डालें, पैगंबर इस्लाम के बताए हुए रास्ते पे हम अमल कराने की कोशिश करें। और मैं आपको और तेजी के साथ बताता चलूं, पता है मेरे दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी है जिनका नाम हजरत अबू हुरैरा है। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और हाजिर होने के बाद अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मुझे निसियान की बीमारी हो गई है, मुझे भूलने की बीमारी हो गई है। पैगंबर ने ये नहीं फरमाया कि चले जाओ फला तबीब से इलाज कराओ, फला डॉक्टर के पास जाओ, फला जो है तबीब के पास जाओ, फला जो है हकीम के पास जाओ, बल्कि पैगंबर ने कहा था अबू हुरैरा से, ये अबू हुरैरा अपनी चादर को फैलाओ। चादर फैलाने के बाद मुस्तफा ने चुल्लू बनाकर जो है एक मर्तबा जो है दाएं से लेकर उस जो है चादर में डाला, दूसरी मर्तबा डाला, डालने के बाद अबू हुरैरा से पैगंबर फरमाते हैं ये अबू हुरैरा अब चादर को समेट के अपने सीने से लगा लो। अबू हुरैरा फरमाते हैं कि उस चादर को अपने सीने से लगाना था कि निसियान की बीमारी भी खत्म हो गई। पहले जो बातें मैं भूल चुका था सबके सब बातें मुझे याद आ गई। तभी तो बरेली के इमाम अहमद रजा फरमाते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। पता मेरे दोस्तों, हमारे सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि हमें अगर कोई देने वाला है तो आमना के लाल मोहम्मद अरबी खुदा की जाते गिरामी है। और मैं और आपको आगे बताता चलूं, सहाबा इकराम का मजमा लगा था, पैगंबर अलैहिस्सलातु तस्लीम जलवा अफरोज थे, आमना के लाल तस्लीम फरमाते और सहाबा इकराम के बीच में जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीम फरमाते मुस्तफा का चेहरा इस तरह चमक रहा था, इस तरह दमक रहा था। मुस्तफा जो है इस तरीके से जो है मुस्तफा के चेहरे से जो है चमक निकल रही थी। पता मेरे दोस्तों, तमाम सहाबा इकराम टकटकी बांध के आमना के लाल के रुखसार को देखते, आमना के लाल की सूरत को देखते, आमना के लाल के जो है चेहरे पाक को देखते और मुस्तफा जो है सहाबा के बीच में इस तरह से जगमगा रहे थे जैसे तारों के बीच में चौधरी का चांद जगमगाया करता है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब नबी फरमाते हैं ये मेरे सहाबा सुनो सुनो, मैं तुझे एक वाकया बताऊं। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतना फरमाया, तमाम सहाबा इकराम फरमाते हैं हाँ या रसूल अल्लाह आप मुझे एक वाकया बता दे। पैगंबर फरमाते हैं सुनोगे? कहा हाँ या रसूल अल्लाह। पैगंबर फरमाते हैं सुनो मेरे सहाबा, एक इंसान है जो घर से निकला और घर से जब निकलने का सफर इरादा किया ना, मुस्तहकम इरादा किया, पक्का इरादा किया। खाना खाने के बाद जो है मस्कीजे में पानी भरा, भरने के बाद वो घर से निकला, निकलने के बाद काफी दूर तक वो निकल गया। जब उसे प्यास लगी, प्यास ने हल किया, उसके पास मस्कीजे में पानी था, पानी पीने के बाद और आगे सफर किया और सफर करने के बाद जो है रास्ते में पानी उसका खत्म हो गया। अब नबी फरमाते हैं वो प्यास की शिद्दत से बेताब हो गया, निढाल हो गया, कभी दाएं भागता था, कभी बाएं भागता था, कभी आगे देखता था कि कहीं मुझे कुआं मिल जाए,
जाए, कहीं पानी मिल जाए जिससे मैं अपनी प्यास बुझा लूं। आका फरमाते हैं ऐसा वो इंसान कर रहा था। सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह और आगे मुझे बताइए। नबी फरमाते हैं कि कुछ दूर जाने के बाद उसे एक कुआं नजर आया और उस कुआं के पास पहुंचा। पहुंचने के बाद बाल्टी ली, बाल्टी में रस्सी बांध कर जो है कुएं से पानी निकाला। निकालने के बाद जो है हाथ पाँव धुला, धुलने के बाद पानी पिया, पीने के बाद मस्कीजे में पानी रखा, रखने के बाद फिर वो आगे बढ़ा। आगे जाने के बाद क्या देखा, एक कुत्ता है जो प्यासे जो है तड़प रहा है। उसे पानी अगर न मिले तो कुत्ता हो सकता है मर जाए, मौत के मुंह में जो है चला जाए। वो इंसान, नबी फरमाते हैं कि वो इंसान फिर वापस लौटा। लौटने के बाद कुएं के करीब आया, बाल्टी में रस्सी बांधने के बाद पानी निकाला। निकालने के बाद जो है वो बाल्टी से पानी भरा हुआ लेकर गया कुत्ते के पास। उसे पिलाता रहा, उस वक्त तक पिलाता रहा जब तक कि पानी उसकी प्यास खत्म न हो गई। जब प्यास खत्म हो गई, थोड़ा सा पानी बच गया बाल्टी में, उस पानी को उस इंसान ने क्या किया, कुत्ते के ऊपर डाल दिया। अब सहाबा फरमाते हैं या रसूल अल्लाह ये तो गिरी हुई मखलूक है, उसके कुत्ते को उसने पानी पिलाया, उसे क्या फायदा मिला? उसके शरीर के ऊपर पानी डाल दिया, उसको क्या फायदा मिला? तो नबी फरमाते हैं ए मेरे सहाबा सुनो सुनो, वो भली कुत्ता जो है गिरी मखलूक है, उसको उस इंसान ने पानी पिलाया। पानी पिलाने की वजह से अल्लाह ने उसका मकाम जो है जन्नत में लिख दिया है, उसका नाम जो है जन्नत में कर दिया है, उसका दाखिला जन्नत में फरमा दिया है। अब साफ लफ्जों में समझते चलो, अगर कुत्ते को जो गिरी मखलूक को आम इंसान अगर पानी पिला दे तो अल्लाह ताला उसे बख्श देगा, जन्नती बना सकता है। तो मेरा ईमान कहता है चाहे कोई भी इंसान हो, अपने माँ के नाम पर कुरान खानी करवा कर, खाना बनवा कर अपने रिश्तेदार को, गरीब को, यतीम को अगर वो खिलाता है तो जो खुदा गिरी मखलूक को पानी पिलाने की वजह से जन्नती बना सकता है, तो मेरा ईमान कहता है कि कुरान खानी करवाने वाले को, कुरान खानी करवाने वाले को अल्लाह सवाब भी अता फरमाएगा और उसके मरहूम को बख्श के जन्नत का हकदार भी बना सकता है। लेकिन क्या मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत किया करे। आओ कुछ लोग कहते हैं ना कि इस्लाम के चाहने वालों, इस्लाम के चाहने वालों का तरीका जो है गलत है। लेकिन आओ मैं आपको बताता चलूं कि पैगंबर ने हम सबको कितना अच्छा पैगाम दिया, कितना अच्छा दर्स दिया, कितना अच्छा सबक दिया। पता मेरे दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी जो है वजू फरमा रहे थे, एक शख्स, और वो देहाती शख्स था, वजू फरमा रहे थे और फरमाते फरमाते जो है पानी ज्यादा गिरा रहे थे, पानी ज्यादा नुकसान कर रहे थे। मुस्तफा फरमाते हैं ए शख्स, ऐसा है पानी ज्यादा जो है बहाना जायज नहीं है बल्कि गुनाह है, गुनाह है। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा पानी ज्यादा मत बहाया करो, बल्कि जितनी तुम्हारी जरूरत के लिए वो पानी तुम्हारे लिए काफी हो उतना ही इस्तेमाल करो। अब साफ लफ्जों में समझते चलो कि मुस्तफा जो पानी ज्यादा बहाए उसको नाजायज हराम फरमाते हैं, तो मुस्तफा कैसे लोगों को हुक्म देंगे कि एक इंसान दूसरे इंसान का खून बहाए, एक इंसान दूसरे के ऊपर जबर करे, एक इंसान दूसरे को सताए। आओ मैं आपको और आगे बताता चलूं। पता मेरे दोस्तों, एक बार झुम झुम कर दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह रब्बु मुहम्मदीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन